Hello dear learners, today we are going to talk about analytical paragraph writing of class 10th which is going to ask in your upcoming board exam. As you all know that CBSE ने आपके पेपर में दो राइटिंग सेक्शन दिए हुए हैं. One is your letter writings that I will discuss with you later and second is analytical paragraph. आपका पेपर अगर देखा जाए तो राइटिंग सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी है. There are two writing section which is going to ask, right? And I hope it is clear to you and I am expecting that in your in the most of the school the syllabus is all about to finish. It's October is going on and you have one more month to for your preparation. After that you will be preparing for your pre-board exams. So it's my humble advice to all of you that now you must gear up, you must start preparing proper way so that you can cover up your syllabus on time, and you must have enough time to have a good revision of the syllabus, not only English but also other subjects. Today we are going to discuss about the topic analytical paragraph writing. As I told you, this topic is one of the easiest topic. If you know, if you understand, अगर आपको समझ में आता है then this topic is going to be very easy. अगर आपको समझ में नहीं आता और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो this is going to be one of the difficult topic for you, क्योंकि किसी भी in this question you are going to be given one data, one information. ये ग्राफ के रूप में हो सकता है, पाई चार्ट के रूप में हो सकता है या कोई भी डाटा हो सकता है, ठीक है, जिसको आपको समझना है and after that you have to write a paragraph on the basis of that data. तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको किसी भी चीज़ को देख कर उसकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करना है, जनरेट करने की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा. ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, राइट. अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आप किसी इमेज को देखते हैं तो यू जनरेट सम आइडियाज़, उसी तरह आपको कुछ डाटा दिया जाएगा, उस डाटा की हेल्प से आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट द पैराग्राफ. यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. जो भी इंफॉर्मेशन उस ग्राफ पाई चार्ट में दिया गया है उसको यूज करके यू हैव टू क्रिएट दैट पैराग्राफ. वेरी सिंपल. आई एम गोइंग टू टेल यू अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स and we will see so many example in this today video, and at the end of the video your doubts whatever you have related analytical paragraph writing will be clear. It's my guarantee. So let's go ahead, see the example, see the and try to understand it in a better way so that you all are able to do this question very easy and very proper way in your pre-board exam as well as in your board exam. So let's go ahead. So dear learner, as I told you that today we are going to discuss analytical paragraph. This video is going to be bilingual ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में, उनको भी समझ में आए जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, and for those whose English is good they are able to understand English to English for them also. एनालिटिकल पैराग्राफ, सबसे पहले ये किस तरह का पैराग्राफ होता है ये समझना बहुत ही जरूरी है माय डियर. सी, एनालिटिकल पैराग्राफ मीन्स व्हाट, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ on the basis of some data, some information which is given in the form of a pie chart or graph or something like that, right? And there is a word limit also, 100 to 120 word limit is there. तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है. A few things which I am telling you directly, आप उसको अपने दिमाग में रखें. सबसे नंबर the first point is that आपका एनालिटिकल पैराग्राफ एक पैराग्राफ में होगा. आपको एक से अधिक पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है. जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है आप उसे कंपाइल करें वन पैराग्राफ में. यू नीड नॉट टू गो फॉर सेकंड पैराग्राफ, नंबर वन. नंबर टू, द वर्ड लिमिट 100 टू 120, 100 टू 120. अब यहाँ पे दो तरह के प्रश्न होते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 100 टू 120 को क्रॉस कर जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर इमेजिनेशन पावर. उनको इन्फॉर्मेशन कुछ दे जाती है, वो एक्सीड कर जाते हैं, वो ज़्यादा लिखने की कैपेबल है. There are some students those who are not able to make even 100 to 120 words. अब वो क्या करें, उनको कुछ रेडीमेड लाइन्स, कुछ सेंटेंसेस, कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना होगा बिफोर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसको आप यूज कर सकते हैं हर एनालिटिकल पैराग्राफ में, ठीक है. और कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स है, उसी जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उससे आपको यूज करना है. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं कैसे करना है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग को, राइट. See, while writing an analytical paragraph writing for a social magazine, the following features should be kept in mind. जब भी आप एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. नंबर वन, इट शुड बी ब्रीफ बट कंप्लीट. आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ होना चाहिए वो ब्रीफ होना चाहिए. ब्रीफ करने का मतलब है 100 टू 120 वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है. उसकी वर्ड लिमिट 100 टू 120 ही रखिए जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, राइट.
क्योंकि एक्सेस वर्ड लिखने के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अब मैं ये कह रहा हूँ कि 100 to 120 ही लिखना है, तो ऐसा नहीं कि आप एक एक वर्ड काउंट करें और आपने 4-5 लाइनें लिखी और उसमें 100 to 120 वर्ड्स कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। एक वर्ड का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ गुड तो गुड एक वर्ड हो गया, ठीक है। सो यू ट्राई टू राइट 100 to 120 वर्ड। अगर आप 10 to 15 वर्ड एक्सीड भी कर जाते हैं, देयर इज नो इशू, बट ऐसा नहीं कि आपने बस काउंट करके लिख दिया नो in less word. तो keep first thing you must write, you should be brief and but complete. Second point is should be to the point. आपका जो पैराग्राफ होगा वो उस डाटा, उस पाई चार्ट या उस इंफॉर्मेशन के अराउंड ही होगा जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पेपर में दी गई है। ऐसा नहीं कि यू डोंट थिंक दैट टीचर विल गिव यू मार्क अगर आप कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं है। वॉट एवर, बिकॉज योर पेपर, योर एग्जामिनर इज हैविंग आंसर की ऑफ दैट पैराग्राफ। वो एग्जाम जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो सारी चीज़ें सर्च करेगा विद द हेल्प ऑफ आंसर की, और अगर वो चीज़ें उसको आंसर की आपके आंसर में नहीं मिलेंगी तो ही विल गिव यू लड्डू। लड्डू मीन्स ही विल गिव यू 0 मार्क्स। सो आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू लुकिंग फॉर दैट लड्डू विच यू नोबडी कैन ईट, राइट। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस। इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस, इस पॉइंट को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। ह्यूमरस का मतलब मजाकिया, बट हमें ह्यूमरस नहीं लिखना है, ये थोड़ा सा इमेथोडिकल होगा, ठीक है, ये इम्प्रॉपर होगा। आप इंटरेस्टिंग लिखने की कोशिश करिए, ह्यूमरस नहीं, मजाकिया नहीं, ठीक है। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड करेक्ट। लैंग्वेज आपकी सिंपल और करेक्ट होनी चाहिए। आपको कोई ना बॉम्बास्टिक और बहुत ही एग्जैजरेटिंग वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस को यूज करिए, नॉर्मल वर्ड्स को यूज करके और जनरेट करिए, ठीक है। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। क्लियर? अब हम आई होप कि अ फ्यू थिंग इज क्लियर टू यू ऑल दैट। पहली बात कि हमें ब्रीफ लिखना है। सेकेंड थिंग, हमें वर्ड लिमिट को फॉलो करना है 100 to 120। थर्ड थिंग इज दैट हमें एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है। हमें किसी भी इम्प्रॉपर वर्ड या फिर वेरी डिफिकल्ट वर्ड या ऐसा कुछ सोचकर नहीं लिखना। जो भी इंफॉर्मेशन आपको विजुअल हो रही, जो भी आपकी आंखों से दिख रहा है इन द क्वेश्चन पेपर regarding that pie chart, that data which is given in the question paper, आप उसको समझेंगे और फिर उसे आप लिखना शुरू करेंगे in your own language। सिंपल थिंग, जो कुछ दिया है आप उसको तो लिख सकते हैं ना, that's it, but you need to do the practice my dear। चलिए आगे देखते हैं। and do one more thing, you must try to आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा that you must avoid doing mistakes ना, कटिंग ना करें। राइटिंग सेक्शन try to do less mistakes, और अगर मिस्टेक होते हैं एक माइनर कट देंगे और आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे पूरा कॉपी को खराब नहीं करेंगे, राइट। विल गिव अ स्मॉल कट एंड मूव अहेड, फिर नया वर्ड लिखेंगे अगर मिस्टेक होता है। बट हमें कोशिश करना है कि शुड नॉट डू मिस्टेक, और ये तभी पॉसिबल है जब आप माय डियर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आई होप इट इज क्लियर। हाँ, वन मोर थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू, दैट इज टाइटल। आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को एक टाइटल देंगे, सुटेबल टाइटल देंगे अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन पाई चार्ट विच इज गिवन टू यू। अब एक क्वेश्चन ये आता है सर हमें ये टाइटल कहाँ से मिलेगा? माय डियर, ये क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन से ही आप पिक कर लें, लिखते हैं, ठीक है। आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, बट इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन जनरेटिंग योरसेल्फ देन यू कैन कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं आर्टिकल पैराग्राफ को बहुत ही आसान भाषा में। द फॉलोइंग पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ पब्लिशिंग अ बुक। ये क्या दिखाता है? अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए जो यहाँ पे लिखा है। अगर आपको यही बात नहीं समझ में आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पाई चार्ट है किस चीज के बारे में? तो फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये केवल यहाँ नहीं, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट, और पॉइंट और क्वालिटी दैट यू मस्ट हैव। तभी आप जल्दी से क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देंगे। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल गिव आंसर दैट इज inappropriate or that is not according to the question। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया और कुछ और लिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पाई चार्ट है किसका? एक बुक पब्लिशिंग में जितने खर्चे होते हैं उसका एक पाई चार्ट है, ठीक है। देखिए, स्टडी द पाई चार्ट, पाई चार्ट को समझिए। राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड एनालाइजिंग द गिवन डाटा। इस डाटा के आधार पे आप क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ। कुछ चीज़ और दी गई है, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है लेकिन साइड में लिखा है, आप इसको ध्यान देंगे, इससे आपको समझ में आएगा ये 10, 10%, 15%, 20% ये क्या दिखा रहा है। प्रमोशन कॉस्ट, मतलब
कोई बुक आप पब्लिश करते हो तो क्या क्या चीज़ होती है, प्रमोशन होती है, रॉयल्टी होती है, बाइंडिंग होती है, पेपर कॉस्ट होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है। मतलब जब हम एक बुक पब्लिश करते हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस उस बुक पब्लिशिंग में आती है। क्लियर? अब चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ दिखा रहा है, 25%, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेपर कॉस्ट। मतलब जब आप बुक पब्लिश कराएंगे, बुक छापेंगे, छपवाने के लिए देंगे, तो सबसे ज़्यादा एक्सचार्ज किसमें लगेगा, 25% चार्ज आपको देना पड़ेगा बुक के पेपर के लिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे लिखने से पहले आपको इसको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने इसको देखा और शुरू कर दिया, समझिए, दिमाग पे एक बार सोचिए और फिर आगे बढ़िए। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा रहे हैं, 25% पैसा जो लग रहा है आपका, मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन पेपर। नेक्स्ट है कि 10%, ये 10% किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी देख लीजिए, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना लग रहा है, 10%। मतलब बुक को ले जाना, बाकी सारे जितने भी काम, ट्रांसपोर्ट के जितने काम होते हैं, उसमें मनी इज चार्ज 10% ऑफ टोटल 100%। और ये जो अमाउंट है ये 100% को दिखा रहा है। ये 20% किसको रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा हम देख लेते हैं। 20% ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, रॉयल, यस, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। हाँ नहीं, इसको चले देखते हैं। ये 20% किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइंडिंग को। मतलब बुक की जो बाइंडिंग में कितना परसेंट खर्चा हो रहा है, 20%। ये सेकंड हाईएस्ट अमाउंट है पेपर के बाद। नेक्स्ट क्या है, ये 15%। ये देखते हैं वर्टिकल लाइन कहाँ पे दिख रही है, ये दिख रही है वर्टिकल लाइन ना, ये वाली। प्रमोशन कॉस्ट है 15%। उसके बाद रॉयल्टी, ये जो 20% रॉयल्टी में जा रहा है, ठीक है। एंड प्रिंटिंग कॉस्ट है 10%, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है, 10%। तो ये सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब इसे आप लिखेंगे कैसे, कंपाइल कैसे करेंगे, इसको देखिए। तो आपको एक बात समझ में है कि ये क्या है, एक बुक पब्लिश करने में जो खर्चे हो रहे हैं उसके बारे में ये ग्राफ दिया हुआ है। आपको ये समझ में आएगा कितने कितने परसेंट किसका। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे इसको आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार ध्यान से यहाँ से पढ़िए और लिखते शुरू कर दीजिए कि भाई 25% किसका है, दिखा रहा है 25% पेपर का कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ये 10% ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग का कॉस्ट ये रहा, 15% प्रिंटिंग का कॉस्ट हो गया। उसके बाद बाइंडिंग का कॉस्ट 20% है, और आफ्टर दैट रॉयल्टी का कॉस्ट कितना है, 20%। एंड बाइंडिंग और रॉयल्टी दोनों सेम है, और ये 10% प्रमोशन। यहाँ पे आप पेंसिल से लिख सकते हैं इन योर क्वेश्चन पेपर आंसर, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आंसर लिखते वक्त आपको क्या करना है हमारी, और आपको सबसे पहले एक सुटेबल टाइटिंग देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, एक्सपेंडिचर इन पब्लिशिंग ऑफ अ बुक भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर इन पब्लिशिंग ऑफ ए बुक, राइटिंग ऑफ ए बुक। लेकिन यहाँ पे क्या दिया देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक लिखा है, तो आप यहाँ से एक्सपेंडिचर उठा लीजिए और यहाँ से पब्लिशिंग अ बुक, ये 3 वर्ड्स को पिक कर लीजिए। स्पेलिंग भी आपको सही मिल जाएगी, ठीक है। आप खुद से भी एक टाइटल दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, बट अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप मिस्टेक ना करें, स्मार्ट बने, इंटेलिजेंट चीटिंग करें, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट चीटिंग। क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी चीज़ रहती है। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो उसमें 30% आंसर, 30 to 40% आंसर क्वेश्चन पेपर में ही रहते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप वो सारे 40% मार्क्स, 40% आंसर वहाँ से पिक करके अपने आंसर शीट में लिख देंगे, बाहर से कुछ नहीं है। केवल लिटरेचर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में आपको खुद अपनी आइडियोलॉजी यूज करनी है, बाकी हर जगह आपको जो कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज है वहाँ पे भी डाटा मिल जाता है, आंसर मिल जाते हैं, एमसीक्यू मिल जाते हैं, सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आपने डाटा डिसाइड कर लिया, एक्सपेंडिचर इन पब्लिशिंग अ बुक या एक्सपेंडिचर इन पब्लिशिंग। ये आप टाइटल सेंटर में लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप आंसर लिखेंगे, दोनों तरफ मार्जिन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे और अपने पेज के सेंटर पे। वन मोर थिंग, योर क्वेश्चन पेपर, योर आंसर शीट इज हैविंग लॉट्स ऑफ पेपर, लॉट्स ऑफ सीट, राइट। तो आपको हॉश नहीं करना, यू विल राइट वन आंसर ऑन वन साइड ऑफ द सीट, वरीड नहीं होना। वन मोर थिंग, यू नीड नॉट टू मेक दिस ग्राफ, दिस वन यू नीड नॉट टू मेक योर आंसर सीट। आपका आंसर केवल यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये ग्राफ आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है, इससे आंसर से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल आंसर लिखना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आप हेडिंग डालेंगे एक्सपेंडिचर इन पब्लिशिंग, फिर आप लिखेंगे एज वी ऑल नो। अब कुछ लाइन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको खुद दिमाग में रख लेनी है। देखो, जो भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे उसकी पहली लाइन और दूसरी लाइन आप अपने तरफ से ऐड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एज वी ऑल नो बुक पब्लिशिंग इज नॉट एन इजी जॉब।
ये लाइन आप अपनी तरफ से लिख देंगे। ये बात, ये पैराग्राफ नहीं, ये पाई चार्ट नहीं हाईलाइट कर रहा है, पाई चार्ट की और परसेंटेज दिखा रहा है, लेकिन आपको एक बात ये बता रहा है कि व्हेन यू आर गोइंग टू पब्लिश अ बुक इट्स चार्ज सो मच, एक्सपेंसेस आर सो मेनी। तो आपको वहाँ से आइडिया मिल गया कि एज वी नो ऑल बुक्स पब्लिशिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, कि बुक को पब्लिश करना एक आसान काम नहीं है। ये लाइन आप अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। और नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, इन अदर क्वेश्चन आल्सो आप पाई चार्ट को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग लाइन क्रिएट करेंगे खुद से। बात समझ में आई। वन सेकेंड थिंग, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे डियर, दो जो पाई चार्ट, जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है वो मोस्टली प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो कीप इन योर माइंड दैट यू मस्ट यूज इट व्हाइल राइटिंग। आप मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस प्रेजेंट के बनाने की कोशिश करिए, राइट। आपके एनालिटिकल पैराग्राफ सही हो जाए, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ जो होता है वो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में किसी करंट सिचुएशन को दिखाता है, ठीक है। जैसे बुक पब्लिश करने में इतना पैसा लगेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इट रिक्वायर्स द एफर्ट्स ऑफ द मेनी पीपल एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग इट्स, द बुक कैन आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर वेरियस हेड। क्या लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो बुक पब्लिशिंग एक आसान काम नहीं है, और जब हम बुक पब्लिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आई एम टेलिंग यू क्लियरली इन हिंदी ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं फिर से I will explain you English and Hindi both, so you don't worry, right? चलिए, as we can see in the pie chart, आप देखिए यहाँ से कहाँ आ गया। आपने एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट और दो सेंटेंस आपने बनाए हैं खुद के ऑन इसको देखने के बाद, और तीसरा जो सेंटेंस बन रहा है हमारे यहाँ से देखिए, एज वी कैन सी, ये अब आ गया पाई चार्ट के बारे में। एज वी कैन सी इन द पाई चार्ट अबव दैट द मेजर कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन बाइंडिंग एंड पेपर। भाई सिंपल सी बात है, देखिए ये 25% क्या दिखा है, इट इज शोइंग पेपर कॉस्ट एंड 20% बाइंडिंग कॉस्ट। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, व्हेन यू आर राइटिंग आर्टिकल पैराग्राफ आपको यूज करना है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। आप इस लोएस्ट परसेंटेज से उठा के हाईएस्ट परसेंटेज से शुरू कर सकते हैं, तक जा सकते हैं, या फिर आप हाईएस्ट और लोएस्ट में कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप हाईएस्ट परसेंटेज और एक्सपेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एज we can see in the pie chart that above that the major cost is involved in the binding and paper। बाइंडिंग और पेपर 25% पेपर में जा रहा है और 20% बाइंडिंग में, तो मेजर कॉस्ट है। मिल गया आइडिया, यहाँ से आपने लिख लिया। आगे देखिए, publishing in a book, binding and paper, we can say that these two are the major rare material for publishing a book। सिंपल सी बात है, आप ये लाइन अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। It seems that these are the most costly things और most costly expenses in publishing a book। मतलब बाइंडिंग और पेपर क्या सबसे ज़्यादा कॉस्ट, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, चार्ज इन पब्लिशिंग ए बुक। आगे बढ़ते हैं। About 20% ऑफ द कॉस्ट गोज इनटू द प्रिंटिंग द बुक, प्रिंटिंग में जा रहा है बुक, whereas the promotion and transport cost around 10%। अब देखिए यहाँ पे प्रमोशन और ट्रांसपोर्ट ये दोनों क्या है, 10% है। प्रमोशन का 10% और ट्रांसपोर्ट का भी 10%। अब ये दोनों सिमिलर है, तो आप दो जब जो चीज़ें आपको सिमिलर दिखें, जिसके परसेंटेज सिमिलर है, आप उसको कंबाइन करके लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अराउंड 10% ईच ऑफ द टोटल बुक पब्लिशिंग एक्सपेंडिचर एज मच एज 15% ऑफ टोटल बुक पब्लिशिंग कॉस्ट इज पुट असाइड फॉर द रॉयल्टी पर्पज। और इस बुक पब्लिशिंग में 15% कहाँ चला जा रहा है, रॉयल्टी कॉस्ट में चला जा रहा है, राइट। सी वाट एवर आई एम टेलिंग, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, केवल 3 to 4 लाइन मैंने अपनी तरफ से बोली, बाकी सारी लाइन ऑल द स्टेटमेंट आर बीइंग स्पोकन और रिटन ऑन अकाउंट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द पाई चार्ट। क्लियर। आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग फ्रॉम माई साइड माई डियर एक्सेप्ट 4 लाइन जो मैंने आपको बताई कैसे आपको लिखना है। वो आपकी ओपनिंग लाइन होगी, ओपनिंग फर्स्ट, सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, फिर आप वहीं पे आ जाएंगे कहाँ पे, एज वी सी इन द पाई चार्ट। आप इसको क्रैम कर लीजिए, एज वी सी इन द पाई चार्ट, एज वी सी इन द ग्राफ, एज वी सी इन द डाटा गिवन। ये लाइन लर्न कर लीजिए, आप इसी से स्टार्ट कर देंगे। फिर थर्ड लाइन, ठीक है। As much as 15% of the total book publishing cost is put aside for the royalty purpose। मैंने बताया 15% रॉयल्टी में जा रहा है। We can conclude by saying, अब देखो जो
आपकी पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ में फर्स्ट 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट 3 लाइन, फर्स्ट 3 सेंटेंसेस आपके होंगे और लास्ट के 1 और 2 सेंटेंस भी आपके होंगे। बाकी बीच के जितने होंगे वो आप डाटा के हिसाब से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन जो लिखी है ये राइटर अपने अकॉर्डिंग लिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिटिकल पैराग्राफ। क्या लिख रहा है वो? वी कैन कंक्लूड। अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इसको समझने के बाद क्या रिजल्ट क्या रहा है? conclude by saying that the book publishing involves a lot of things। भाई यही नहीं पता चल रहा है कि बुक पब्लिशिंग में केवल बुक, पेपर और कंटेंट ही नहीं चाहिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो वी कैन कंक्लूड, अब ये लाइन आप किसी भी डाटा में, किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, ये हर एनालिटिकल पैराग्राफ में सेट हो जाएगा। वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट द बुक पब्लिशिंग इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी डू नॉट इवन बोदर अबाउट व्हेन वी आर रीडिंग द बुक। और इसका मतलब क्या है कि बुक पब्लिशिंग में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं जब हम बुक को पढ़ते हैं। सो डियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ की पॉइंट। सबसे पहले आपको टू द पॉइंट चलना है। नंबर 2, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। नंबर 3, आपका जो आंसर शुरू होगा उसमें आप एक टाइटल देंगे, सुटेबल टाइटल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नंबर 4, आपके आर्टिकल पैराग्राफ का फर्स्ट 3 स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट 3 लाइन्स और ओपनिंग स्टेटमेंट आप खुद से लिखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ दिस डाटा गिवन, उससे मिलता जुलता। लास्ट के जो 1 और 2 लाइन होगी, जो कंक्लूजन होगा, उसको भी आप अपनी तरफ से लिखेंगे एज इट इज गिवन इन दिस एग्जाम्पल आई हैव शोन यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन और इसका आंसर दोनों आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। और यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन, इट विल बी क्लियर टू यू। आई एम गोइंग टू अपलोड 50 एनालिटिकल पैराग्राफ्स क्वेश्चन। तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में मास्टर बना दूंगा, इट्स माई गारंटी। यू विल नॉट फील लिटिल प्रॉब्लम while writing the analytical paragraph writing. So first you revise it, many more are coming. If you're new to my channel, please do subscribe this your YouTube channel, that's English Tycoon, and please do share the channel with your friends also, if that they must also get benefit from this knowledgeful content. So I hope you will prepare, and if you have any doubt you can write in comment section, my dear. I will definitely reply to you and I will try to help you every moment till your board exams get completed. So see you in the next video. Till then, goodbye, good luck.